Hello everyone, welcome to Manual Education. In this video, we are going to discuss the most important current affair from the October month for Hotel Management NCHM CET JEE 2025 examination. So this is the part 2 of the video series. Further more parts will be coming up. So stay tuned on this channel and do like and subscribe this video. So let's start this session. Before that, here is some important information regarding our self-study program. So if you want to join us through self-study program, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for live classes on pan India level and the counselor will guide you. Else if you want to join us through website, I will give you the tour guide of the website from where you can avail each and everything from there. So let's go to the website. So you have to go to the manualedu.com. Here you can see the hotel management. Click on that and you will get the NCHM CET JEE examinations. So here it is written that live classes. So you have to go to the live classes. Live classes are available for fast track batches are also available. Self study course आप यहाँ से avail कर सकते हो for the 2025-2026 examination. Sectional course are also available here, that is English section, logical reasoning, quantitative aptitude, GK and current affair. Mock tests are available for full length as well as the topic wide mock test. यहाँ से आप avail कर सकते हो. आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस सिटी वाज द क्रूज भारत मिशन लॉन्च टू इनहांस क्रूज टूरिज्म इन इंडिया. तो क्रूज टूरिज्म को जो है प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और उसमें भी क्या है मैरीटाइम टूरिज्म को, क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने कहाँ से जो है क्रूज भारत मिशन जो है वो लॉन्च किया है. न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई. एंड द करेक्ट आंसर इज मुंबई. So the Cruise Bharat mission was launched from Mumbai on October 1, 2024 by Union Minister Shri Sarvanand Sonowal, क्योंकि ये जो है पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं. This initiative aims to transform India into a global cruise tourism hub with a target of doubling cruise passenger traffic by 2029 तक जो है क्रूज को डबल करने के इससे जो है ये मिशन लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which Indian state did Prime Minister Narendra Modi recently launch the construction of 4 compressed biogas plant. So 4 compressed biogas plant जो है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के इसमें जो है एक अलग उसको जो अचीव करना है, नेट ज़ीरो अचीव करना है 2070 तक. रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट जो है अचीव करना है, दैट इज टू द 2030 तक. उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है रिगार्डिंग दैट. तो वो जो है कहाँ इन्होंने ये लॉन्च किया है? West Bengal, Odisha, Bihar, Assam, and the correct answer is Assam. So Prime Minister Narendra Modi inaugurated the construction of 4 compressed biogas plant in Assam on October 2nd, 2024 as part of the स्वच्छता ही सेवा 2024 प्रोग्राम के जो है इसके लिए ये लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर विजिट टू अटेंड द SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग ऑन October 15, 16, 2024. SCO क्या है? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. और इसमें जो है ये किस सिटी में जो है इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, आपको एस जयशंकर वो गए थे पार्टिसिपेट करने, इंडिया को रिप्रेजेंट करने. तो ये कहाँ हुआ था इस बार SCO का समिट? पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान. एंड द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान. सो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर विल लीड इंडियाज डेलीगेशन टू पाकिस्तान for the SCO heads of government meeting, marketing the first visit by Indian EM since 2015. तो पाकिस्तान में गए हैं, इस्लामाबाद में जो है इन्होंने समिट जो है वो ज्वाइन किया वहाँ पर जाकर उस समिट को. तो ये आपको SCO जो है बहुत सारे मेंबर हैं इसमें, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, रशिया है, चाइना है और सेंट्रल एशिया की कंट्री है कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान. ये सारे कंट्री जो हैं वो क्या है, दैट इज द मेंबर ऑफ द SCO. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट इज वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेटेड एनुअली. तो हम जानते हैं ये नेशनल टीचर डे जो है वो 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. तो वर्ल्ड टीचर डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है, किस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं? 5 सितंबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर, 5 अक्टूबर. एंड द करेक्ट आंसर इज 5 अक्टूबर. तो 5 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन October 5th टू ऑनर द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेटर्स ग्लोबली. और ये सबसे पहली बार जो है 1994 में यूनेस्को ने इसको एस्टैब्लिश किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द यंगेस्ट क्लाइंबर टू कंप्लीट ऑल 14 ऑफ द वर्ल्ड्स 8000 मीटर पीक. तो जितने भी 8000 मीटर पीक जो आपको माउंटेन है उसको कंकर करने वाले जो हैं, कंपीट करने वाले जो हैं, वह कौन से जो है आपको यंगेस्ट बन गए हैं क्लाइंबर.
जैसे कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, दैट इज 8850 मीटर के अप्रॉक्स जो है उसकी हाइट है। उसी तरह से और भी बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिसकी हाइट जो है 14 माउंटेन है जिसकी हाइट 8000 से एबव है, और उन्हीं सब माउंटेन पे जो है ये चढ़ पाए हैं, ये सबसे यंगेस्ट बन गए। ये कौन है, नीमा रिंजी शेरपा, मिंगमा ग्याबू शेरपा, डेविड शेरपा, तेंजिंग नोर्गे, एंड द करेक्ट आंसर इज नीमा रिंजी शेरपा। So Nima Rinji Sherpa achieved this remarkable feat at the age of 18 by swimming Shisha Pangma on October 9, 2024 में जो है इन्होंने इस पे जब किया है तो उसके बाद जाके ये 14th माउंटेन पे ये चढ़ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज बीन अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस बुलेट ट्रेन। तो इंडिया का पहला इंडिजीनियस बुलेट ट्रेन जो है वो बन रहा है, और इंडिजीनियसली बन रहा है, इंडिया में ही बन रहा है, मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के अंडर। और ये किस कंपनी को जो है ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, रेल कोच फैक्ट्री, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BEML एंड लार्सन एंड टुब्रो, एंड द करेक्ट आंसर इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सो BEML a state-owned company has secured significant contract worth 866.87 crore from the Integral Coach Factory to design, manufacture and commission India first indigenously built bullet train। तो ये जो है आपको ये BEML है, सो BHEL नहीं है, भेल नहीं है, ये BEML को मिला है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है। The next question is which Indian languages have been given the status of classical language by the Union government recently। तो classical language का status जो है वो दिया गया है, किस लैंग्वेज को दिया गया है recently, प्रकृत एंड असामीज, बंगाली, मराठी एंड पाली, all of the above, and the correct answer is all of the above। So the total number of classical language in India now stands at 11। Tamil was the first language to get the classical language status इन इंडिया इन 2004। तो अभी जो है टोटल 5 लैंग्वेज को मिला है, इससे पहले 6 लैंग्वेज था। कौन कौन था 6 लैंग्वेज, तो सबसे पहले तमिल था, देन संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़ीसी जो है दैट वाज द क्लासिकल लैंग्वेज में था। अब ये 5 लैंग्वेज और भी ऐड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लॉडिया शीनबॉम हैज बीन स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो क्लॉडिया शीनबॉम जो है वो किस देश की, किस कंट्री की प्रेसिडेंट बन गई हैं, मोजाम्बिक, तंजानिया, मैक्सिको, वेनेजुएला, एंड द करेक्ट आंसर इज मैक्सिको। सो क्लॉडिया शीनबॉम हैज स्वर्न इन एज द 66th प्रेसिडेंट ऑफ द मैक्सिको ऑन 1st of October 2024, और दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट Sheinbaum is the first female president of Mexico in its 200 year history। तो पहली बार जो है एक फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मैक्सिको की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड द 2024 शास्त्र रामानुजन अवार्ड। तो शास्त्र रामानुजन अवार्ड जो है वो किन को दिया गया है, ये यंग मैथमेटिशियन को दिया जाता है, और इस बार जो है वो किसको दिया गया है ये अवार्ड, राजश्री बिरला, MB श्रीमस कुमार, अलेक्जेंडर दुन, नंदिनी गुप्ता, and the correct answer is Alexander Dun। So recently the 2024 Shastra Ramanujan Prize was awarded to Alexander Dun from the Georgia Institute of Technology US। और ये जो प्राइज़ है वो 2005 में जो है शास्त्र राम यूनिवर्सिटी ने इसको इनॉग्रेट किया था, स्टार्ट किया था, और ये आपको एनुअली दिया जाता है। और किनके बर्थडे पर, किनके इस पर दिया जाता है, दैट इज कि जो ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे रामानुजन, उनके बर्थ एनिवर्सरी पर जो है ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2024। सो नोबेल प्राइज हैज बीन अनाउंस्ड, और नोबेल प्राइज जो है टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है। तो सभी का आपको देख के जाना है, जितने भी फील्ड हैं आपको, दैट इज कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, और उसके बाद लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। तो इन 6 फील्ड में जो है आपको ये नोबेल प्राइज़ प्रोवाइड किया जाता है। तो इस बार जो है मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोज, गैरी रुवाकुन, बोथ ए एंड बी, ड्रू विसमैन, एंड द करेक्ट आंसर इज both A and B। So both A and B has received the Nobel Prize of 2024। That is in 2024 2 American scientists Victor Ambrose and Gary Ruvakun have been awarded the Nobel Prize in Medicine। तो इन दोनों को जो है मेडिसिन के फील्ड में जो है ये अवार्ड दिया गया है। सो द डुओ हैज बीन गिवन द अवार्ड फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA एंड इट्स रोल इन
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, तो माइक्रो आरएनए का जो है इन्होंने डिस्कवरी किया है, जिसकी वजह से ये अवार्ड जो है इन दोनों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द 70th सेशन ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन हेल्ड, तो WHO जो है उसका 77th सेशन था, साउथ ईस्ट एशिया का ये सेशन था, और ये कहाँ जो है वो कंडक्ट किया गया है, ब्राज़ील, अमेरिका, इंडिया, इटली, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। So the 77th session of the WHO Southeast Asia region is being held in New Delhi from October 7 to 9, और इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा जो है उनको इस 77th सेशन का जो है वो प्रेसिडेंट चुना गया था। और अगर कहा जाए कि ये जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है उसकी जो WHO का ये जो रीजन है उसके प्रेसिडेंट कौन है, सो दैट इज साइमा वजीद इज द प्रेसिडेंट डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। WHO की बात करते हैं तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7 अप्रैल 1948, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा, और इसीलिए जो है 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आफ्टर 10 years इलेक्शन हैज बीन कंडक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर, और जो है अभी कौन जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद, एंड द करेक्ट आंसर इज उमर अब्दुल्ला। So the Congress National Conference Alliance has won 48 seats in the Jammu and Kashmir Assembly Election 2024, and the number of assembly seat in Jammu and Kashmir is 90 है, और जिसमें से जो है आपको 48 सीट इन्होंने जीत लिया है इनकी पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक इंडिया रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2024 रिलीज हो चुका है, और इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी आई है, 105, 112, 115, 102, and the correct answer is 105. So the global hunger index is jointly released by Concerned Wildlife, ये आयरलैंड की इंस्टीट्यूशन है, और वेल्ट हंगर हिल्फ है, ये जर्मनी का इंस्टीट्यूशन है, दोनों मिलकर जो है ये आपको रिलीज करती है। इंडिया जो है इसका पोजीशन है 105 पोजीशन पे हंगर इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट, तो हम सबको पता है रतन टाटा का जो है डेथ हो चुका है, और उसके बाद जो है टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन किनको बनाया गया है, शरद कुमार, नोएल टाटा, अविरल जैन, श्रीमस कुमार, एंड द करेक्ट आंसर इज नोएल टाटा। सो नोएल टाटा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। नोएल टाटा इज द हाफ ब्रदर ऑफ रतन टाटा के, ये हाफ ब्रदर हैं, और इनको ही टाटा का जो है चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आसियान समिट 2024 हैज बीन हेल्ड इन विच कंट्री, तो आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो समिट है 2024 में कहाँ कंडक्ट हुआ है, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, लाओस, एंड द करेक्ट आंसर इज लाओस। सो द 44th एंड 45th आसियान समिट वेयर हेल्ड इन वियनशियन, लाओस में ये हुआ है, और इसका थीम क्या था, आसियान इनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, दिस वाज द थीम ऑफ आसियान समिट। और जो है अभी जो है इसके कितने मेंबर हैं, टोटल 10 मेंबर हैं, तो कौन कौन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया जो है इन सबके मेंबर हैं। तो आसियान समिट जो है, इसी में इंडिया आसियान समिट भी हुआ था जिसमें मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया आसियान समिट में मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बिकम द बेस्ट स्टेट इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023, तो वाटर को कंजर्वेशन के लिए, वाटर के हार्वेस्टिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, और 5th नेशनल वाटर अवार्ड में जो है सबसे बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको दिया गया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, एंड द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। सो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR Patil has announced the winner of the 5th National Water Award. And the best state category, Odisha has been ranked first, उत्तर प्रदेश सेकेंड, एंड गुजरात एंड पुडुचेरी ज्वाइंटली जो है तो वो थर्ड पर है। तो नंबर 1 पोजीशन किसका है, वो उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो वर्ल्ड फूड डे के तौर पे जो है वर्ल्ड फूड डे ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं, कब ऑब्जर्व करते हैं, 16th अक्टूबर, 15th अक्टूबर, 14th अक्टूबर, 12th अक्टूबर, एंड द करेक्ट आंसर इज 16th अक्टूबर। So World Food Day is observed every year on October 16 with the aim of eradicating hunger, और क्यों ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज ऑन 16th of October 1945 FAO यूनाइटेड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और FAO जो है वो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीफ जस्टिस जो है अब इंडिया के कौन बन गए हैं नए। अभी DY चंद्रचूड़ थे 50th नंबर के, अब उनके जगह पे है किसने जो है वो कौन से चीफ जस्टिस बन गए हैं। संजीव खन्ना, BR गवई, विक्रम नाथ, VV नागरत्ना। एंड द करेक्ट आंसर इज संजीव खन्ना। सो जस्टिस संजीव खन्ना विल बी द 51st चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। CGI चंद्रचूड़ टू रिटायर 10th नवंबर 2024। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट द सुप्रीम कोर्ट जज एज वेल एज द हाई कोर्ट। इनका टेन्योर कितना होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो ये जो है 65 ईयर्स जो है इनकी एज जो है वो इनका ये होता है रिटायरमेंट एज। और अगर हाई कोर्ट की बात करते हैं तो 62 ईयर्स जो है हाई कोर्ट के जज का होता है रिटायरमेंट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन द मिस इंडिया 2024 टाइटल। सो मिस इंडिया 2024 का टाइटल जो है वो किसने जीता है। श्वेता सरदा, प्रिया सेन, निकिता पोरवाल, नंदिनी गुप्ता। एंड द करेक्ट आंसर इज निकिता पोरवाल। सो निकिता पोरवाल, a resident of Ujjain in Madhya Pradesh, has won the title of Femina Miss India 2024 and Nikita will now represent India in the Miss World pageant में जो है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी निकिता पोरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीमेन T20 वर्ल्ड कप भी कंडक्ट हो गया है, मेंस भी हो गया है। तो मेंस जो है इंडिया ने जीत लिया था और ये वीमेंस T20 वर्ल्ड कप भी कंडक्ट कर दिया गया है। तो ये किसने जीता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया। एंड द करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड। सो होस्ट यूनाइटेड अरब एमिराट्स था और न्यूजीलैंड जो है साउथ अफ्रीका को हराकर जो है ये आपको वीमेंस T20 वर्ल्ड कप इसने जीत लिया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो थी वो थी एमेलिया केर फ्रॉम द न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। सो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के जो चेयरपर्सन है वो कौन बन गई है। NCW की चेयरमैन कौन बनी है अभी। विजया रहाटकर, निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी, प्रियंका चतुर्वेदी। एंड द करेक्ट आंसर इज विजया रहाटकर। So the central government has appointed Vijaya Rahatkar as the chairperson of the National Commission for Women and she has replaced Rekha Sharma as the chairperson. The first chairperson of the National Commission for Women कौन थी, तो वो थी जयंती पटनायक जो है सबसे पहली चेयरमैन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 16th ब्रिक्स समिट 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। ब्रिक्स जो है आपको ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका जो है इसका एक्रोनिम है। और ये जो 16th समिट था वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रशिया। एंड द करेक्ट आंसर इज रशिया। सो द 16th ब्रिक्स समिट 2024 टेक प्लेस इन काजान, रशिया फ्रॉम 22 to 24 अक्टूबर 2024। और इसमें जो कंट्री जो है वो था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और भी कंट्री जो है ज्वाइन हुई, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब एमिराट्स जो है इसमें ज्वाइन कर गई है इजिप्ट में। अब और भी ब्रिक्स प्लस जो है ये बन गया ब्रिक्स प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड। तो यूनाइटेड नेशन डे जो है हम कब सेलिब्रेट करते हैं। 24 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। एंड द करेक्ट आंसर इज 24 अक्टूबर। सो यूनाइटेड नेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इस दिन, दैट इज ऑन 24 अक्टूबर 1945। और इसमें जो मेंबर कंट्री है टोटल 193 है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यूनाइटेड नेशन का वो क्या है। रशिया, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज़ एंड स्पेनिश जो है ये जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपको यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू IQ ईयर रिपोर्ट विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो IQ ईयर का जो है रिपोर्ट आया है 2024 का और इसमें जो है सबसे पॉल्यूटेड सिटी जो है वो कौन सी है। लाहौर, ढाका, कोलंबो, इस्लामाबाद। एंड द करेक्ट आंसर इज लाहौर। सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IQ ईयर रिपोर्ट अक्टूबर 2024, लाहौर जो है पाकिस्तान इज करंटली द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। और लाहौर के बाद जो है वो कौन है, वो है दिल्ली जो है सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है एंड इट इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल। मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल अगर पूछा जाए तो वो दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द 69th मेंबर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है 69th मेंबर जो है वह कौन सी कंट्री बन गई है। बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्राज़ील, इजराइल। एंड द करेक्ट आंसर इज इजराइल। So Israel has joined the Asian Development Bank as its 69th member. It is a multilateral development bank focus on the Asia Pacific region और 1966 में जो है आपको इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मसात्सु असाकावा जो है इसके प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। इसका हेडक्वार्टर मनीला आपको फिलीपींस में मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन चूजन एज द वर्ल्ड्स टॉप सेंट्रल बैंकर बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने किसको वर्ल्ड का जो है टॉप बैंकर के तौर पे चूज किया है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, मनमोहन सिंह। एंड द करेक्ट आंसर इज शक्तिकांत दास। So RBI Governor Shaktikant Das has been selected as the world's top central banker for the second consecutive year by the US-based Global Finance magazine, and he has got an A+ grade in the central bank report। RBI की बात करते हैं तो इस बार established on 1 April 1935 को establish हुआ था। RBI जो है नेशनलाइज कब हुआ? दैट इज़ 1949 को जो है RBI को नेशनलाइज किया गया। फर्स्ट इंडियन जो इसके गवर्नर थे वो थे कौन? CD देशमुख जो है आपको पहले गवर्नर थे, और पहले जो गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर कौन थे? दैट इज ऑसबॉर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन द बैलन डोर अवार्ड 2024। दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड इन फुटबॉल, और इसमें जो है बैलन डोर अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्कांट, नोवाक जोकोविच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी। एंड द करेक्ट आंसर इज रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्कांट। सो द बैलन डोर स्टार्टेड इन 1956। मेंस का जो है वो किसको दिया गया? रोड्रिगो को, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, और वीमेंस का जो है आपको एताना बोनमाती को दिया गया। सी ऑल्सो बिलोंग्स टू स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO ने किस देश को मलेरिया जो है वो फ्री जो है डिक्लेयर कर दिया है? मलेरिया जो है वो किससे होता है? वो प्रोटोजोआ से होता है, और इसको कैरी कौन करता है? तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो कैरी करता है, तो उसके काटने से आपको मलेरिया हो जाएगा। ये किस कंट्री को इसने फ्री डिक्लेयर किया है? इजिप्ट, इथियोपिया, जॉर्डन, सीरिया। एंड द करेक्ट आंसर इज इजिप्ट। So Egypt has been officially certified as malaria free by the WHO. This year it has become the second country in the world to get this status after Cabo Verde के बाद ये दूसरा कंट्री जो है इस साल बना है जो मलेरिया फ्री हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द बुक रतन टाटा अ लाइफ रिटन बाय whom विल बी पब्लिश्ड। तो रतन टाटा अ लाइफ रिटन, अ लाइफ ये जो है किसने लिखा है, जिसको पब्लिश किया गया है? शांतानु नारायण, थॉमस मैथ्यू, दारा सिंह खुराना, रस्किन बॉन्ड। And the correct answer is Thomas Matthew. So HarperCollins India announced the publication of रतन टाटा A Life by Thomas Matthew। तो ये जो बुक है इन्होंने लिखा है, और ये रतन टाटा के ऊपर है। तो ये जो इस बुक का नाम याद रखिएगा, इसके राइटर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 विच कंट्री लिव्स इन द पुअरेस्ट मोस्ट। तो ये जो है आपको ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है, इसमें ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा पुअर जो है वो किस देश में रहते हैं, किस कंट्री में रहते हैं। तो इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इथियोपिया। एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। सो रिलीज बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। टॉपिक क्या था? पॉवर्टी एमिड कन्फ्लिक्ट, और 5 कंट्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। तो इंडिया 234 मिलियन, क्योंकि यहाँ का जो है आपको पॉपुलेशन ही सबसे ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ आपको ज़्यादा ही पॉवर्टी देखने को मिलेगा। उसके बाद पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया और कॉन्गो जो है उसके बाद फॉलो करता है इंडिया को। तो ये सारे कंट्री जो है सबसे ज़्यादा पुअर यहाँ रहते हैं। So these are the 30 most important questions from the October month we have discussed in this session. With that we will conclude the session here. If you guys have any query, write in the comment section, we will get back to you. So thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.